So today's target is to complete the chapter 1 of audit, theoretical questions and answers from test your knowledge. Question number 1. ABC company files a lawsuit against unlucky company for 5 crore rupees. The attorney of unlucky company feels that the suit is without merit. So unlucky company merely discloses the existence of the lawsuit in the notes accompanying its financial statements. As an auditor of unlucky company, how you will deal with the situation? एक लॉ सूट फाइल हुआ कंपनी के अगेंस्ट में 5 करोड़ रुपए का. जो अटॉर्नी है अनलकी कंपनी का, ही फील्स दैट द सूट इज़ विदाउट मेरिट, मतलब किसी काम का सूट नहीं है कोई, मतलब हार जाएंगे वो लोग. सो अनलकी कंपनी मियरली डिस्क्लोजेस द एग्जिस्टेंस, सिर्फ नोट्स में एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे दिया और कुछ भी नहीं किया. तो एज एन ऑडिटर ऑफ अनलकी कंपनी, हाउ यू विल डील विद दिस सिचुएशन? आंसर: एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी. As per AS 29, provisions, contingent liabilities and contingent assets, a contingent liability is a possible obligation. A contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise. Further, future events that may affect the amount required to settle an obligation should be reflected in the amount of a provision where there is a sufficient objective evidence that the event will occur. As per SA 570 going concern, there are certain examples of events or conditions that individually or collectively may cast significant doubt about the going concern assumption pending legal or regulatory proceedings against the entity that may, if successful, result in claims that the entity is unlikely to be able to satisfy is one of the example of such events. When the auditor concludes that the use of the going concern assumption is appropriate in the circumstances but a material uncertainty exists, the auditor shall determine whether the financial statements adequately describe the principal events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and the management's plan to deal with these events or conditions and disclose clearly that there is a material uncertainty related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and therefore that it may be unable to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. In the instant case, ABC company has filed a lawsuit against unlucky company for 5 crore. Though the attorney of unlucky company feels that the suit is without merit, so the company merely discloses the existence of lawsuit in the notes accompanying its financial statements, but the auditor may evaluate the source data on which basis the opinion is formed. If the auditor finds the uncertainty, he may request the management to adjust the sum of rupees 5 crore by making provision for expense as per AS 29. If the management does not accept the request, the auditor should qualify the report. तो इस आंसर में किस किस चीज़ों का रेफरेंस दिया है? एक तो AS 29 का, दूसरा SA 570 दैट इज गोइंग कंसर्न, मतलब आंसर स्टार्ट होगा AS 29 से, दैट इज़ प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिजेंट असेट्स. कोई सेक्शन नहीं होता है इसमें जैसे कंपनीज एक्ट का, इसलिए कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ कंटिजेंट लाइबिलिटी के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है? प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिजेंट असेट्स में AS 29 लगा दो और इसका जो भी रेलेवेंट इंडेक्स है वो कोड कर दो. आई थिंक 10 है शायद, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा. अ कंटिजेंट लाइबिलिटी इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन. कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise. एक कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? कंटिजेंट लाइबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है जो कि अराइज होता है बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट एंड द एग्जिस्टेंस, और उसका एग्जिस्टेंस जो है वॉज कन्फर्म्ड बाय द अकरेंस, होने से या ना होने से, ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स. ऐसे एक या एक से ज़्यादा अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, जो कि एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है. फर्दर, फ्यूचर इवेंट्स दैट में अफेक्ट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल एन ऑब्लिगेशन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन वेयर देयर इज सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द इवेंट विल अकर.
कुछ ऐसे फ्यूचर इवेंट जो कि उस अमाउंट को अफेक्ट करेंगे, उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए शुड बी रिफ्लेक्टेड। उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए कुछ भी ऐसा अमाउंट है जो कि फ्यूचर इवेंट की वजह से हो सकता है, उस अमाउंट को एज अ प्रोविज़न आपको शो करना पड़ेगा अगर आपके पास सफिशेंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो दैट द इवेंट विल अकर। आपको लगता है कि हाँ केस हार जाओगे, तो आपको अगर सफिशेंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस है आपके पास तो आप प्रोविज़न बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया, ये वाला एक फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर का, एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी। सेकेंड बात करी SA 570 गोइंग कंसर्न की। देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स और इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिविजुअली, ये गोइंग कंसर्न का हमेशा का ये तो रटा हुआ होना चाहिए आपको, SA 570 का लाइन जो है गोइंग कंसर्न का, देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट और कंडीशंस दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, अकेले या फिर सब सारे इवेंट साथ में मिलके, मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, एक सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन के ऊपर, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एंटिटी दैट मे इफ़ सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल हो गए, जो पेंडिंग लीगल लिटिगेशंस हमारे अगेंस्ट में हैं, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, दैट विल रिजल्ट इन क्लेम्स, उनकी वजह से क्लेम्स आएंगे दैट द एंटिटी इज़ अनलाइकली टू अनेबल टू सेटिस्फाई इफ़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच इवेंट। अगर वो क्लेम आता है तो कंपनी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी अगर प्रोविजन नहीं बनाया तो। When the auditor concludes that the use of the going concern assumption is appropriate in the circumstances but a material uncertainty exists, जहाँ पे जब ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट द यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो अजम्पशन अब हम लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम कि हमारी एंटिटी एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है, इज़ अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस बट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, वो अभी के सर्कमस्टांसेस की वजह से अप्रोप्रिएट है बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, that the auditor shall determine whether the financial statements adequately describe, जो financial statements हैं वो adequately describe करते हैं the principal events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern and the management's plan, और मैनेजमेंट का प्लान क्या है कि वो उस अनसर्टेनिटी से कैसे डील करेगा, उन कंडीशंस और उन इवेंट से कैसे डील करेगा, मैनेजमेंट्स प्लान टू डील विद दीज इवेंट्स और कंडीशंस एंड डिस्क्लोज क्लियरली, और क्लियरली डिस्क्लोज होना चाहिए दैट देयर इज़ अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड देयरफॉर दैट इट मे बी अनेबल टू रियलाइज इट्स असेट्स एंड डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटीज़। कंपनी उस पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ पे वो अपने असेट्स बेच नहीं पाएगी और जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उनको डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। In the instant case, ABC company has filed a lawsuit against Unlucky Company for 5 crore, though the attorney of Unlucky Company feels that the suit is without merit, so the company merely discloses the existence of lawsuit in the notes। ये क्वेश्चन उठा के लिख दिया आपने कि इंस्टेंट केस में क्या हुआ कि ABC लिमिटेड था, उसके ऊपर एक लॉसूट फाइल हुआ, ABC कंपनी ने एक लॉसूट फाइल किया अगेंस्ट अनलकी कंपनी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का, जो अनलकी कंपनी का अटॉर्नी है उसको लगता है कि जो सूट है वो विदाउट मेरिट है, सो द कंपनी मेयरली डिस्क्लोजेस, कंपनी ने सिर्फ मेयरली उसका डिस्क्लोजर दे दिया नोट्स में अकम्पेइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट जो ऑडिटर है, ऑडिटर शुड इवैल्यूएट, ऑडिटर में इवैल्यूएट द सोर्स डेटा, ऑडिटर चाहे तो इवैल्यूएट कर सकता है सोर्स डेटा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ विच द ओपिनियन इज़ फ्रेम्ड, उसका ओपिनियन किस बेसिस पे फॉर्म होगा। इफ़ द ऑडिटर फाइंड्स द अनसर्टेनिटी, और ऑडिटर को अगर अनसर्टेनिटी मिलती है, ही में रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट, और फिर वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट की कि आप इसको एडजस्ट करो 5 करोड़ के सम को, इसका एक प्रोविज़न बनाओ प्रॉपर एक्सपेंस का, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंस एज पर AS 29, एंड इफ़ द मैनेजमेंट डज नॉट एक्सेप्ट, और मैनेजमेंट अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे तो आप ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर दो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। In the course of audit of K Limited, its auditor Mr. N observed that there was a special audit conducted at the instance of the management on a possible suspicion of a fraud and requested for a copy of the report to enable him to report on the fraud aspects. Despite many reminders, it was not provided. In absence of the special audit report, Mr. N insisted that he be provided with at least a written representation in respect of fraud on or by the company. For this request also the management remained silent. Please guide Mr. N. K Limited का ऑडिट कर रहा था मिस्टर एन,
He observed that there was a special audit conducted at the instance of the management. मैनेजमेंट ने एक स्पेशल ऑडिट करवाया था ऑन अ पॉसिबल सस्पेशन ऑफ अ फ्रॉड, क्योंकि मैनेजमेंट को लग रहा था फ्रॉड है तो उन्होंने स्पेशल ऑडिट करवाया था, एंड रिक्वेस्टेड फॉर अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट to enable him to report on the fraud aspects. Despite many reminders, it was not provided. In the absence of the special audit report, Mr. N insisted that he be provided with at least a written representation in respect of fraud. कि written representation मिलना चाहिए auditor को on fraud by the company, on or by the company. For this request also the management remained silent. Answer. Auditor's responsibilities relating to fraud. As per SA 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. The auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. एक ऐसे यूज़ हुआ यहाँ पे SA 240, that is the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statements. Second, as per SA 580 written representations, if the management modifies or does not provide the requested written representation, it may alert the auditor to the possibility that one or more significant issues may exist. Second SA इसमें यूज़ हुआ SA 580, SA 240 and SA 580, that is written representation. SA 240 the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. दूसरा ये क्वेश्चन में बात करी थी कि उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा है मैनेजमेंट से, इसीलिए SA 580 भी लगा दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का. दैट इफ मैनेजमेंट मॉडिफाइज और डज नॉट प्रोवाइड, मैनेजमेंट या तो मॉडिफाई करता है या प्रोवाइड नहीं करता है रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इट मे अलर्ट द ऑडिटर to the possibility that one or more significant issues may exist. In the instant case, the auditor observed that there was a special audit conducted at the instance of the management on a possible suspicion of fraud. Therefore, the auditor requested for special audit report, which was not provided by the management despite of many reminders. The auditor also insisted for written representation in respect of fraud on or by the company. या तो कंपनी पे फ्रॉड हुआ है या कंपनी ने फ्रॉड किया है. फॉर दिस रिक्वेस्ट ऑल्सो मैनेजमेंट रिमेन साइलेंट. ये वाला जो लाइन था पूरा, मैनेजमेंट ऑडिटर ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ स्पेशल ऑडिट कंडक्ट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंडक्टेड एट द इंस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑन अ पॉसिबल सस्पेशन ऑफ अ फ्रॉड एंड रिक्वेस्टेड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू इनेबल हिम टू रिपोर्ट ऑन द फ्रॉड एस्पेक्ट्स. अब यहाँ पे कैसे लिखा है, इन द इंस्टेंट केस द ऑडिटर ऑब्जर्व, ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया that there was a special audit conducted at the instance of the management. There was a special audit conducted at the instance of the management on a possible suspicion of fraud. एक लाइन खत्म. दूसरी लाइन, therefore the auditor requested for special audit report. इसीलिए ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया कि स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट दे दो मुझे, which was not provided by the management, जो मैनेजमेंट ने नहीं दिया despite of many reminders. The auditor also insisted for written representation in respect of fraud on or by the company. For this request also management remained silent. इस request पे भी management silent ही रहा. It may be noted that if management does not provide one or more of the requested written representations, the auditor shall discuss the matter with management, reevaluate the integrity of the management, evaluate the effect that this may have on the reliability of representations, whether oral or written, and audit evidence in general, and take appropriate actions including determining the possible effects on the opinion in the auditor's report. Further, as per section 143 subsection 12 of the Companies Act, ये fraud के लिए होता है. If an auditor of a company in the course of the performance of his duties as auditor has reason to believe that an offence involving fraud is being or has been committed against the company by officers or employees of the company, he shall immediately report the matter to the central government. In case the amount of fraud is rupees 1 crore or above, or audit committee or board in other cases, इन केस द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व लेस देन 1 करोड़. अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो आप ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओ. अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है तो आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओ. विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज पर क्लॉज 11 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020. अभी अमेंडमेंट की वजह से जो कारो 2020 था वो आगे खसक गया. मतलब अभी वी हैव टू राइट कारो 2016 in May 21 examination. Clause तो सेम रहेगा. Clause 11 of para 3 of CARO. Whether any fraud by the company or any fraud on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year. If yes, the nature and amount involved to be indicated.
If, as a result of a misstatement resulting from the fraud or suspected fraud, the auditor encounters exceptional circumstances that bring into question the auditor's ability to continue performing the audit, the auditor shall determine the professional and legal responsibilities applicable in the circumstances, including whether there is a requirement for the auditor to report to the person or persons who made the audit appointment, or in some cases to the regulatory authorities. Consider whether it is appropriate to withdraw from the engagement, whether withdrawal from the engagement is legally permitted, and if the auditor withdraws, अगर auditor withdraw करता है तो discuss with the appropriate level of management and those charged with governance the auditor's withdrawal from the engagement and the reasons for the withdrawal, and determine whether there is a professional or legal requirement to report to the person or persons who made the audit appointment, or in some cases to the regulatory authorities, the auditor's withdrawal from the engagement and the reasons for the withdrawal. यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मतलब इसमें ऐसे 240 भी यूज़ हुआ है, ऐसे 580 भी यूज़ हुआ है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 भी यूज़ हुआ है, कारो का जो क्लॉज 11 है उसका रेफरेंस भी दिया है. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन भी डिफाइन किया पूरा कि क्वेश्चन में क्या बोला था. इट मे बी नोटेड दैट, फिर अपना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया. इफ़ एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट, उसके बाद अगर मैनेजमेंट मतलब जो ऑडिटर इनकाउंटर करता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, उस केस में अगर ऑडिटर विड्रॉ करने की सोच रहा है, मतलब अगर ऑडिटर इज़ अनेबल टू कंटिन्यू द परफॉर्म, तो ऑडिटर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो चूज़ कर सकता है, ये भी दिया बिल्कुल. सो मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी आपको एक आंसर में. ऐसे 240 बिकॉज वो तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है. दूसरा ऐसे 580 वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा था, इसलिए वहाँ पे वो किया. उसके बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन है ये. और जो क्वेश्चन है वो भी के लिमिटेड से रिलेटेड है, इसीलिए भी 143 सबसेक्शन 12 लिखा है. मतलब क्योंकि कंपनीज पे लगता है ना, कारो और सेक्शन 143(12) बिकॉज जिस पे फ्रॉड हुआ है वो कंपनी थी, इसलिए सेक्शन 143(12) का रेफरेंस दिया. कारो क्लॉज 11 का रेफरेंस दिया. कारो 2016 लिखना है, एक बार समझते हैं. एज पर एस ए 240, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ऑब्टेन करे रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल. जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देखें एक साथ, तो दैट दोज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, वेदर क्रॉस्ड बाय फ्रॉड और एरर. भले ही फ्रॉड से हुआ हो या फिर एरर से हुआ, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टेकन एज अ होल, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर दैट ही शुड टेक रीजनेबल एश्योरेंस, दैट ही शुड ऑब्टेन. ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑब्टेन करे रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर. सेकेंड पॉइंट, ऐसे 580 जो था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में. इफ़ मैनेजमेंट मॉडिफाइज और डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो जो ऑडिटर है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए टू द पॉसिबिलिटी दैट वन और मोर सिग्निफिकेंट इशूज़, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मैनेजमेंट में, कुछ ना कुछ गड़बड़ है कंपनी में. तो ऑडिटर को अलर्ट हो जाना चाहिए. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रॉपर, उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो लगानी चाहिए. इन द इंस्टेंट केस क्वेश्चन में क्या बोला कि ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया कि स्पेशल ऑडिट कंडक्ट हुआ था, मैनेजमेंट ने करवाया था. मैनेजमेंट ने क्यों करवाया था? क्योंकि पॉसिबल सस्पेशन था फ्रॉड का. देयरफॉर जो ऑडिटर है, ऑडिटर ने स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट मांगी मैनेजमेंट से, बट मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं करी बहुत रिमाइंडर्स के बाद भी. और उसके बाद ऑडिटर ने इंसिस्ट किया कि भाई आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो एटलीस्ट लिख के कि इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड, कि कंपनी पे कोई फ्रॉड नहीं है, कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है. और इस बात पे भी मैनेजमेंट साइलेंट था, मैनेजमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. इट मे बी नोटेड दैट इफ़ द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगने के बाद भी मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, द ऑडिटर शुड डिस्कस द मैटर. उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर मैटर जो है डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, फिर री इवैल्यूएट करेगा इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इतना इंटीग्रल है कि नहीं, कि मतलब मैनेजमेंट सही है कि नहीं, ये चीज़ इवैल्यूएट करेगा. इवैल्यूएट द इफेक्ट दैट दिस मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस
उसके बाद इवेल्युएट करेगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा भी हो, ओरल हो, रिटर्न हो, एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल, कि ऑडिट एविडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और रिप्रेजेंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और उस हिसाब से ऑडिटर एक्शन लेगा, इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन, और ये भी पता करेगा कि उसके खुद के ओपिनियन पे, जो ऑडिट रिपोर्ट में वो ओपिनियन देगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. Then, Section 143, Subsection 12 of the Companies Act. If an auditor of a company, in the course of performance of his duties as auditor, has reason to believe that an offence involving, एक ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर, जब वो अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसको एक पता चलता है, उसको एक रीज़न मिलता है, रीज़न टू बिलीव दैट एन ऑफेंस, एक ऑफेंस हुआ है, दैट इज़ इन्वॉल्विंग फ्रॉड, इज़ बीइंग और हैज़ बिन कमिटेड, या तो हो चुका है या हो रहा है, कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट हो रहा है, और कौन कर रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ या उसके ऑफिसर्स ही कर रहे हैं, एंड ही शैल इमीडिएटली रिपोर्ट, और इसका इमीडिएटली रिपोर्ट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन केस द फ्रॉड इज एक्सीडिंग ₹1 करोड़, और ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस द फ्रॉड इज लेस देन ₹1 करोड़, विद इन सच टाइम एज मे बी, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. उस पर्टिकुलर टाइम में 45 डेज़ का कुछ टाइम रहता है, मतलब 2 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट मांगनी चाहिए. 45 डेज़ के अंदर अगर वहाँ से मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसके बाद आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को बता सकते हो इमीडिएटली. द ऑडिटर देन कारो 2016, द ऑडिटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, और ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कारो के क्लॉज 11 में, क्लॉज 11 पैरा 3 ऑफ कारो 2016, whether any fraud by the company or any fraud on the company, whether any fraud by the company, या तो कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया, और any fraud on the company, या कंपनी पे कुछ फ्रॉड हुआ, by its officers or employees has been noticed, या तो नोटिस हुआ है और रिपोर्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर, इफ़ यस, अगर किया है, नोटिस किया है या फिर रिपोर्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर, इफ़ यस देन द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व, किस तरीके का फ्रॉड है और कितना अमाउंट का फ्रॉड है, दैट हैज़ टू बी इंडिकेटेड. इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ अ मिसस्टेटमेंट, अब कुछ मिसस्टेटमेंट था, उसकी वजह से फ्रॉड हुआ, या कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड था कि हाँ ये फ्रॉड हो सकता है, द ऑडिटर एनकाउंटर्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और ऑडिटर के सामने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गए दैट ब्रिंग इन टू क्वेश्चन द ऑडिटर्स एबिलिटी, जिसकी वजह से ऑडिटर पे क्वेश्चन उठ गया कि भाई आप कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ऑडिट. देन द ऑडिटर शॉल डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बाद ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि उसकी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, दैट इज़ एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेस, उस सर्कमस्टांस में उसकी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, including whether there is a requirement, including whether there is a requirement for the auditor to report to the person or persons who made the auditor appointment, including उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि जिन लोगों ने उसका अपॉइंटमेंट किया था ऑडिटर का, उन्हें रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, वो मेड द ऑडिटर अपॉइंटमेंट. और इन सम केसेस, किसी किसी केसेस में क्या होता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ही आपको बताना पड़ता है अगर आप छोड़ रहे हो ऑडिट. कंसिडर whether it is appropriate to withdraw from the engagement, whether withdrawal from the engagement is legally permitted, और उसको ये भी देखना पड़ेगा ऑडिटर को कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं विड्रॉ करना एंगेजमेंट से, मतलब इस काम को छोड़ के जाना अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और वेदर जो विड्रॉल करना चाह रहा है ऑडिटर उस एंगेजमेंट से, वेदर इट इज़ लीगली परमिटेड और नॉट. एंड इफ़ द ऑडिटर विड्रॉज, अगर ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है फाइनली, 3 पॉइंट हैं इसमें, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, रिपोर्ट करना है ऑडिटर को जिसने अपॉइंटमेंट किया था ऑडिटर का, या फिर लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को. दूसरा पॉइंट है कि ऑडिटर जो है कंसिडर करे वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट और नॉट, एंड वेदर द विड्रॉल इज़ लीगली परमिटेड. देन थर्ड पॉइंट में अगर विड्रॉ करता है तो देन ही शुड डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG द ऑडिटर्स विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड द रीजन फॉर विड्रॉल शैल बी गिवन. डिटरमाइन वेदर देर इज़ अ प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, बार बार आ रही है. द प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट, द प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था. डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पे डिटरमाइन वेदर देर इज़ अ प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है रिपोर्ट करना, टू persons or persons who made the audit appointment, or in some cases to the regulatory authorities, the auditor's withdrawal from the engagement and the reason for the withdrawal. ऑडिटर का विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट
रिपोर्ट करना है और रीज़न भी देना है कि भाई आप क्यों विड्रॉ कर रहे हो. क्वेश्चन 2 भी हो गया. नाउ क्वेश्चन 3. During the course of audit of Star Limited, the auditor received some of the confirmation of the balances of trade payables outstanding in the balance sheet through external confirmation by a negative confirmation request. In the list of trade payables, there are number of trade payables of small balances except one old outstanding balance of 15 lakh rupees, of whom no confirmation on the credit balance received. Comment with respect to standard on auditing. स्टार लिमिटेड का ऑडिट कर रहा था एक ऑडिटर एंड ही रिसीव्ड सम ऑफ द कन्फर्मेशन. ऑडिटर ने कन्फर्मेशन मंगाए बैलेंसेस, ट्रेड पेबल्स के बैलेंसेस के जो आउटस्टैंडिंग थे बैलेंस शीट में दिख रहे थे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से, दैट इज़ बाय ऑल्सो नेगेटिव कन्फर्मेशन से. और जो ट्रेड पेबल्स की लिस्ट थी, देयर आर नंबर ऑफ ट्रेड पेबल्स ऑफ स्मॉल बैलेंसेस एक्सेप्ट वन. बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड पेबल्स थे बट एक बड़ा ट्रेड पेबल था, उसमें 15 लाख रुपए और बहुत पुराना आउटस्टैंडिंग था और उसका कन्फर्मेशन भी रिसीव नहीं हुआ. अब कमेंट करो इस पे ऐसे के हिसाब से. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इज़ SA 505. इस आंसर में सिर्फ एक ही ऐसे लगेगा, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन SA 505, और किसी की रिक्वायरमेंट है भी नहीं. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन SA 505. नेगेटिव कन्फर्मेशन इज़ अ रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर only if the confirming party disagrees with the information provided in the request. Negative confirmation provides less persuasive audit evidence than positive confirmation. The failure to receive a response to a negative confirmation request does not explicitly indicate receipt by the intended party of the confirmation request or verification of the accuracy of the information contained in the request. Accordingly, a failure of a confirming party to respond to a negative confirmation request provides significantly less persuasive audit evidence than does a response to a positive confirmation request. Confirming parties also may be more likely to respond indicating their disagreement with the confirmation request when the information in the request is not in their favor, and less likely to respond otherwise. In the instant case, the auditor sent the negative confirmation requesting the trade payables having outstanding balances in the balance sheet. While doing the audit of Star Limited, one of the old outstanding balances of 15 lakh rupees has not sent the confirmation on the credit balances. In case of non-response, the auditor may examine subsequent cash disbursements, or in case of non-response. अब यहाँ से जो है क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन इतना ही कवर्ड था. In case of non-responses, the auditor may examine subsequent cash disbursement or correspondence from third parties and other records such as goods received, notes. Further, non-response for negative confirmation request does not mean that there is some misstatement, as negative confirmation request itself is to respond to the auditor only if the confirming party disagrees with the information provided in the request. But if the auditor identifies factors that give rise to doubts about the reliability of the response to the confirmation request, he shall obtain further audit evidence to resolve those doubts. As per SA 505 external confirmation, factors to be considered when designing confirmation request include: confirmation request design करते time it should include the assertions being addressed, specific identified risk of material misstatement, layout and presentation of the confirmation request, prior experience of the audit or similar engagement, the method of communication, for example in paper form, by electronic or other medium, management authorization or encouragement to confirming parties to respond to the auditor. Confirming parties may only be willing to respond to the confirmation request containing management authorization. The ability of the intended confirming party to confirm or provide the requested information, for example individual invoice amount versus total balance. A positive external confirmation request asks the confirming party to reply to the auditor in all cases, either by indicating the confirming party's agreement with the given information or by asking the confirming party to provide information. या वो फिल इन दी ब्लैंक्स करके दे दिया कि भाई तुम ही भर के दे दो कि कितना है तुम्हारा, फिर हमको चेक कर लेंगे कि हमारी बुक्स में क्या है. A response to a positive confirmation request ordinarily is expected to provide reliable audit evidence. There is a risk, however, that a confirming party may reply to the confirmation request without verifying that the information is correct. पता चला बिना वेरीफाई किए रिस्पॉन्स दे दिया. The auditor may reduce the risk by using positive confirmation
requests that do not state the amount or otherwise on the confirmation request and ask the confirming party to fill in the amount or furnish other information. On the other hand, use of this type of blank confirmation request may result in lower responses rates because additional effort is required of the confirming parties. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि भाई एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेना था स्टार लिमिटेड के ट्रेड पेबल से ऑडिटर को, नेगेटिव कन्फर्मेशन दिया उन्होंने. आंसर में पूरा SA505 दैट इज़ रिलेटेड विद एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन पहले डिस्क्राइब किया, फिर उसके बाद एक सेकंड तुमने पूरा 4th वाला भी पढ़ दिया, वही मुझे लग रहा था. वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव है, इसमें तो सिर्फ नेगेटिव के बारे में बात करनी है भाई. इतना ही था, सॉरी कोई बात नहीं. नेगेटिव कन्फर्मेशन इज़ अ रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर. नेगेटिव कन्फर्मेशन में क्या होता है कि ऑडिटर जो कन्फर्मिंग पार्टी होती है दे डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, मैनेजमेंट से बात नहीं करते. ओनली इफ़ द कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज, मतलब ऑडिटर ने लिख के भेजा 1000 रुपये का आपका ट्रेड पेबल बाकी है, और अगर वो अग्री करता है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. बट अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे को तो 1500 लेना है, तो वो अपना डिसएग्रीमेंट उसको इन्फॉर्म करेगा प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट. नेगेटिव कन्फर्मेशन प्रोवाइड लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कन्फर्मेशन. जो नेगेटिव कन्फर्मेशंस होते हैं वो लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव कन्फर्मेशंस. द फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स टू अ नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट रिसीट बाय द इंटेंडेड पार्टीज. अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है नेगेटिव कन्फर्मेशन का, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका मतलब ये डज़ नॉट एक्सप्लिसिटली, उसका डज़ नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट रिसीट बाय द, मतलब ये नहीं ज़रूरी कि वही कन्फर्मिंग पार्टी को मिला भी हो जो आपने भेजा है. और वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द रिक्वेस्ट, और जो उसमें लिखा हुआ है वो करेक्ट है. द फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स टू अ नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट receipt by the intended confirming party of the confirmation request or verification of the accuracy of the information contained in the request. Accordingly, a failure of a confirming party to respond to a negative confirmation request, accordingly जब failure होता है confirming party का, वो जब respond नहीं करता negative confirmation request को, provides significantly less persuasive audit evidence. आपको बहुत कम audit evidence मिला है उसके comparison में. Provided significantly less persuasive audit evidence than does a response to a positive confirmation request. Confirming parties also may be more likely to respond indicating their disagreement with the confirmation request when the information in the request is not in their favor. तभी response देंगे जब उनके favor में नहीं होगा, otherwise उनके favor में होगा तो they are likely to respond और less likely to respond otherwise. In the instant case, इस केस में क्या हुआ, the auditor sent the negative confirmation requesting the trade payables having outstanding balances in the balance sheet. While doing the audit of Star Limited, one of the old outstanding balances 15 lakh has not sent the confirmation on the credit balance. अब ज़रूरी थोड़ी है कि भाई नेगेटिव कन्फर्मेशन है, ये ज़रूरी थोड़ी कि अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कुछ गड़बड़ है. हो सकता है 15 लाख ही हो, इसलिए उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया नेगेटिव कन्फर्मेशन का. इन केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स द ऑडिटर में एग्जामिन सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट. अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो ऑडिटर को क्या चेक करना चाहिए, कैश डिसबर्समेंट तो नहीं हुआ कुछ, और करस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज़. और थर्ड पार्टी से करस्पॉन्डेंस मतलब उससे थर्ड पार्टी से बात करनी चाहिए कि भाई क्यों नहीं दे रहा, क्या है इसका, चेक करना चाहिए. और अदर रिकॉर्ड शुड बी चेक्ड एंड सच एज गुड्स रिसीव नोट, गुड्स आए भी हैं कि नहीं. पता चला सिर्फ ट्रेड पेबल बुक एंट्री कर दिया, गुड्स रिसीव नहीं हुए. गुड्स रिसीव हुए होते तो गुड्स रिसीव नोट होना चाहिए. फर्दर नॉन रिस्पॉन्स फॉर नेगेटिव कन्फर्मेशन डज नॉट मीन्स दैट देयर इज अ सम मिसस्टेटमेंट. ज़रूरी नहीं है कि अगर नॉन रिस्पॉन्स हो तो मिसस्टेटमेंट हो. नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इट सेल्फ इज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर ओनली इफ देयर इज द कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट. बट इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज, बट अगर ऑडिटर को कहीं से भी कुछ भी छोटा मोटा आइडेंटिफाई होता है फैक्टर्स दैट गिव राइज टू डाउट, अगर उसको डाउट होता है दैट देयर इज सम चांस ऑफ एरर और फ्रॉड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स टू द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर उसको रिलायबिलिटी अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा डाउट राइज होता है तो ही शैल ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस टू रिजॉल्व दिस डाउट. उसके बाद उसे अगर कुछ भी डाउट होता है ही शैल ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस टू रिजॉल्व दोज डाउट्स. थर्ड भी हो गया. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. Mr. Z, who is appointed as an auditor of Elite Company Limited, wants to use confirmation request as audit evidence during the course of audit. What are the factors to be considered by Mr. Z when designing a confirmation request? Also state the effects of using positive confirmation request by Mr. Z. अब नेगेटिव कन्फर्मेशन ऑब्जर्व कर लिया, अब नीचे जो है पॉजिटिव कन्फर्मेशन के बारे में पता करेंगे. पढ़ तो लिया ही था, एक बार सिर्फ समझ लेते हैं.
एज पर SA 505, इसमें भी SA 505 लगेगा, दैट इज एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन. SA 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूड द असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड. असर्शंस क्या क्या एड्रेस होने चाहिए? स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क. द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट. लेआउट और प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट. प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है ऑडिटर को सिमिलर एंगेजमेंट्स पे. द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है? पेपर फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, या किसी और मीडियम से है. मैनेजमेंट ऑथराइजेशन और एंगेजमेंट. मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन है कि नहीं और एनकरेज कर रहा है कि नहीं मैनेजमेंट कन्फर्मिंग पार्टीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑडिटर को. कन्फर्मिंग पार्टीज़ में ओनली भी विलिंग, और कन्फर्मिंग पार्टीज़ तभी विलिंग होंगी जब मैनेजमेंट बोलेगा, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन होगा उस रिक्वेस्ट पे कि हाँ मैनेजमेंट बोल रहा है तो हम दे देते हैं. द एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी टू कन्फर्म. और एबिलिटी क्या है उस इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी की टू कन्फर्म और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनवॉइस अमाउंट वर्सेस टोटल बैलेंस. A positive external confirmation request asks the confirming party to reply to the auditor in all circumstances, in all cases, either by indicating the confirming party's agreement with the given information. या तो confirming party उसको agree करे जो भी information उसने दिया है अपने confirmation request में, और by asking the confirming party, और by asking confirming party से ही पूछ लो कि भाई आपकी information क्या है, आप provide करो. A response to a positive confirmation. A response to a positive confirmation request ordinarily is expected to provide reliable audit evidence. Positive confirmation से आपको reliable audit evidence मिलता है. Because that trade payable, that party is responding at least ना. नेगेटिव में तो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था. अब उससे ये भी हो सकता है कि पता चला उसके पास पहुँचा ही नहीं, आपने भेजा हो तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया. तो नेगेटिव में तो ये था ना कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप मान लोगे कि ठीक है, बट पता चला वो पहुँचा ही नहीं आपका कन्फर्मेशन उसको, तो कहाँ से करेगा वो रिस्पॉन्ड. तो पॉजिटिव का एक ये पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे कि आपको ऑडिट एविडेंस जो मिलता है वो रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिलता है. रिलायबल ऑडिट एविडेंस विदाउट वेरीफाइंग दैट द इन्फॉर्मेशन. अब ये इसमें रिस्क क्या होता है पॉजिटिव कन्फर्मेशन में कि पार्टी रिप्लाई कर देगी विदाउट वेरीफाइंग. उसने अपनी बुक्स में देखा नहीं और हाँ बोल देगी हाँ ठीक है. द ऑडिटर में रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट दैट डू नॉट स्टेट द अमाउंट. ऑडिटर इस रिस्क को रिड्यूस कर सकता है बाय नॉट स्टेटिंग द अमाउंट ऑन द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एंड आस्क द कन्फर्मिंग पार्टी टू फिल इन द अमाउंट. अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि अगर आप ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिस्पॉन्स के जो रेट रहेंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते. एडिशनल एफर्ट क्यों डालेगा वो ऑडिट के लिए, वो भी किसी और के. सो these what are the factors, these 7 factors: assertions, specific identified risk, layout and presentation, prior experience, method of communication, management authorization, ability of intended confirming party. Assertions being addressed, specific identified risk, layout and presentation, prior experience of the audit, method of communication, management's authorization and encouragement, ability of the intended confirming party, ASAP CALP. Assertions being addressed, specific identified risks of material misstatement including fraud risk, layout and presentation of the confirmation request, prior experience of on the audit or similar engagements, method of communication, management authorization or encouragement, ability of the intended confirming party, assertions being addressed, specific identified risks of material misstatement including fraud risk, layout and presentation of the confirmation request, prior experience of the auditor
prior experience of the auditor on the similar engagements, the method of communication, whether in paper or in electronic form or any other form, management authorization or encouragement to the confirming parties to respond to the auditor. Confirming parties may only be willing to respond to a confirmation request containing management authorization. The ability of the intended confirming party to confirm or provide the requested information. The ability of the intended confirming parties to confirm or provide the requested information. Done. Next is question number 5. R&M company wants to be alert on the possibility of non-compliance with laws and regulations during the course of audit of SRS Limited. R&M company seeks your guidance for identifying the indications of non-compliance with laws and regulations. R&M company wants to be alert on the possibility of non-compliance with laws and regulations during the course of audit. R&M company जो है वो ऑडिटर है, तो they want to be alert that there is no non-compliance of any law or regulation during the course of audit of SRS Limited, and they seek your guidance for identifying the indications of non-compliance with the laws and regulations. SA 250, considerations of laws and regulations. The auditor, consideration of laws and regulations and conduct of an audit in accordance with standards on auditing, और वो जो भी है. Consideration of laws and regulations. The auditor shall perform the audit procedures to help identify. As per SA 250, consideration of laws and regulations, the auditor shall perform the audit procedures to help identify instances of non-compliance with other laws and regulations that may have a material effect on the financial statements by inquiring of management, and where appropriate those charged with governance as to whether the entity is in compliance with such laws and regulations, and inspecting correspondence, if any, with the relevant licensing or regulatory authorities. However, when the auditor become aware of the existence of or information about the following matters, it may also be indication of non-compliance with laws and regulations. Investigations by regulatory organizations and government departments, or payment of fines or penalties, payment for unspecified services or loans to consultants, related parties, employees or government employees, sales commission or agents fees that appear excessive in relation to those ordinarily paid by the entity or in the industry to the services actually received. Purchasing at prices significantly above or below market prices, unusual payments in cash, purchases in the form of cashier's check payable to bearer or transfers to numbered bank accounts, unusual payment towards legal and retainership fees, unusual transactions with companies registered in tax haven, payment for goods or services made other than to the country from which the goods or services originated, payments without proper exchange control documentation, existence of an information system which fails, whether by design or by accident, to provide adequate audit trail or sufficient evidence, unauthorized transactions or improperly recorded transactions, adverse media comment. बहुत ही जनरल आंसर है ये कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए. क्या क्या है? इन्वेस्टिगेशंस बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ फाइन्स. और अगर आपको ये दिख रहा है कि बहुत सारा पेमेंट हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस की, और फाइन्स और पेनल्टीज़ बहुत हैं कंपनी पे, तो उससे आपको पता चलता है कि लॉज और रेगुलेशंस का प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है. सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए पेमेंट हो रहा है. कंसल्टेंट को लोन दिए जा रहे हैं, रिलेटेड पार्टीज़ को लोन दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेमेंट हो रहे हैं. सेल्स कमीशन जो एजेंट की फ़ीस होती है दैट अपीयर एक्सेसिव, मतलब सेल्स कमीशन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है एंटिटी को जितना वो देता है, या फिर जो इंडस्ट्री का उस सर्विस को लेने के लिए एक्चुअली रिसीव करने के लिए जितना कमीशन देना चाहिए उससे ज़्यादा कमीशन पे हो रहा है, और मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे आप परचेज़ कर रहे हो. अनयूजुअल पेमेंट्स हो रहे हैं कैश में, परचेजेस जो कैशियर्स चेक से हो रहे हैं, बियरर चेक से हो रहे हैं, और बहुत सारे अकाउंट्स पे पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है. अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड्स लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, जो लीगल और रिटेनरशिप फ़ीस होती है उसके लिए आप अनयूजुअल पेमेंट कर रहे हो.
अनयूजुअल ट्रांजेक्शन विद कंपनीज, जो कंपनीज टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड हैं उन कंपनीज के साथ आपका अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है. पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज मेड अदर देन टू द कंट्री, और पता चला गुड्स किसी और कंट्री से आ रहे हैं और पेमेंट किसी और कंट्री में जा रहा है. और पेमेंट्स आर बीइंग मेड विदाउट कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपका, उसके बिना आप पेमेंट कर रहे हो. एग्जिस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच फेल्स. ऑडिट ट्रायल आप चेक नहीं कर पा रहे हो. ऑडिट ट्रायल आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो फेल हो रहा है. उसका डिज़ाइन वेदर बाय एक्सीडेंट या फिर डिज़ाइन में उसकी कमियां हैं उसकी डिज़ाइन में, या फिर एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप एडिक्वेट ऑडिट ट्रायल नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हो और आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है. अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स हैं, एडवर्स मीडिया कमेंट, आपकी कंपनी के बारे में लोग गलत मतलब गड़बड़ बातें कर रहे हैं कि हाँ ये कंपनी फ्रॉड है. तो these are all the considerations of laws and regulations as per SA 250, which the auditor shall perform the audit procedures to help identify instances of non-compliance. ये सब चीज़ें करके ऑडिटर जो है नॉन कंप्लाइंस पता कर सकता है with other laws and regulations that may have a material effect on the financial statement, जिनका financial statements पे material effect पड़ सकता है. इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट का इंक्वायरी करो. वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस से बात करो. एज टू वेदर द एंटिटी इज़ इन कंप्लायंस, और हर तरीके से पता करो कि जो कंपनी है वो लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही है, और उनका इंस्पेक्शन करते रहो. इफ़ एनी विद द रिलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी आप इंस्पेक्शन इंस्पेक्ट कर सकते हो किसी भी एविडेंस के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. KRP Limited at its annual general meeting appointed Mr. X, Mr. Y and Mr. Z as joint auditors to auditing for the financial year 18-19. For the valuation of gratuity schemes of the company, Mr. X, Y, Z wanted to refer their own actuaries. Due to differences of opinion, all the joint auditors consulted their respective actuaries. Subsequently, major differences was found in the actuary reports. However, Mr. X agreed to Mr. Y's actuary report, though Mr. Z did not. Mr. X contends that Mr. Y's actuary report shall be considered an audit report due to majority of votes. Now Mr. Z is in dilemma. You are required to briefly explain the responsibilities of auditors when they are jointly and severally responsible in respect of audit conducted by them, and also guide Mr. Z in this situation. Explain the responsibility of auditors in case a report made by Mr. Y is actually later on found faulty. तो इस केस में क्या होता है, जब आपके जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं, उस पर जॉइंट ऑडिट लगता है SA 299. तो यहाँ पे अगर 3 ऑडिटर हैं और तीनों ऑडिटर ने अपने अलग अलग एक्सपर्ट्स का वर्क यूज़ किया है, और उसमें आपको लगता है कि यार इन दो मतलब इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है कि जैसे X और Y दोनों एक साथ हो गए और Z को अलग कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें X और Y का ओपिनियन अलग जाएगा, Z का ओपिनियन अलग जाएगा. Z का भी ऐसा नहीं होगा कि Z का आप छोड़ दोगे, मेजॉरिटी वोट्स जैसा कुछ नहीं होता. मतलब आप अगर कोई एक भी ऑडिटर अगर हट जाता है, अलग ओपिनियन देता है, तो उसका ओपिनियन रिकॉर्ड होगा प्रॉपरली वहाँ पे, और उसको भी एक दो वो दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉर द पार्ट ए, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है जब आप जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हो आप किसी ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए. So answer is differences of opinion among joint auditors. SA 299 on joint audit of financial statements deals with the professional responsibilities which the auditor undertake in accepting such appointments as joint auditors. In respect of the work divided amongst the joint auditors, each joint auditor is responsible only for the work allocated to him, whether or not he has made a separate report on the work performed by him. On the other hand, the joint auditors are jointly and severally responsible in respect of the audit conducted by them as under. जितने भी ऑडिटर्स होते हैं वो जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स एंड इज़ कैरिड आउट बाय ऑल ऑफ देम. ऐसा कोई ऑडिट वर्क था जो डिवाइड नहीं किया और सब ने किया है काम, सब ने ऑडिट किया है पूरा. In respect of the decisions taken by all the joint auditors under audit planning in respect of common audit areas concerning the nature, timing and extent of the audit procedures to be performed by each of the joint auditors. In respect of matters which are brought to the notice of the joint auditors by one of them,
and on which there is an agreement among the joint auditors for examining that the financial statements of the entity comply with the requirements of the relevant statute, for ensuring presentation and disclosure of the financial statements as required by the applicable financial reporting framework, for ensuring that the audit report complies with the requirements of the relevant statutes, the applicable standards on auditing, and other relevant pronouncements issued by ICAI. It is the separate and specific responsibility of each joint auditor to study and evaluate the prevailing systems of internal control relating to the work allocated to him, the extent of inquiries to be made in the course of his audit, the responsibility of obtaining and evaluating information and explanation from the management is generally a joint responsibility of all the auditors. Each joint auditor is entitled to assure that the other joint auditor have carried out their part of work in accordance with the generally accepted audit procedures, and therefore it would not be necessary for joint auditors to review the work performed by other joint auditors. Where in the course of the audit, a joint auditor comes across matters which are relevant in the areas of responsibility of other joint auditors and which deserve their attention, or which require disclosure or require discussion with or application of judgment by other joint auditors, the said joint auditor shall communicate the same to the other joint auditors in writing prior to the completion of the audit. नॉर्मली ऑडिट ख़त्म होने से पहले बताना है आपको रिटर्न लिख के. पता चला ऑडिट खत्म हो गया, उसके बाद लिख रहे हैं कि भाई ये गलती थी, चेक करी कि नहीं करी. भाई ऑडिट खत्म हो गया, आप क्यों बता रहा है, पहले बताना चाहिए था. Normally the joint auditors are required to issue common audit report. However, where the joint auditors are in disagreement with regard to the opinion or any matters to be covered by the audit report, they shall express their opinion in a separate audit report. A joint audit report is not bound by the views of the majority of the joint auditors regarding the opinion or matters to be covered in the audit report, and shall express opinion formed by the said joint auditor in a separate audit report in case of disagreement. In such circumstances, the audit reports issued by the joint auditor shall make a reference to the separate audit report issued by the other joint auditors. Further, separate audit report shall also make a reference to the audit reports issued by other joint auditors. Such reference shall be made under the heading Other Matter paragraph as per revised SA 706 emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditor's report. SA 706 other matter paragraph में आपको लिखना पड़ेगा. In the instant case, there are three auditors, namely XYZ, jointly appointed as an auditor of KRP Limited for the valuation of gratuity scheme of the company, that they referred their own actuaries. Mr. Z, one of the joint auditor, is not satisfied with the report submitted by Mr. Y, referred actuary. He is not agreed with the matters so to be covered by the report, whereas X agreed with the same. Hence, as per SA 299, Z is suggested to express his own opinion through a separate report, whereas Mr. X and Y may provide the joint report for the same. X और Y joint report दे सकते हैं और Z अपनी अलग report दे देगा if Z disagrees with the report of X actuary. Differences of opinion among joint auditors. जो ऐसे 299 है, डील्स विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑडिटर को अंडरटेक करनी चाहिए वाइल appointment of which the appointment responsibilities is the auditor undertake in accepting such appointment of joint auditor. प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ऑडिटर की, जब वो एक जॉइंट ऑडिट एक्सेप्ट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क डिवाइडेड अमंग्स द जॉइंट ऑडिटर्स. जिस भी तरीके से आपका वर्क डिवाइड हुआ है, ईच जॉइंट ऑडिटर, हर एक जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वर्क एलोकेटेड टू हिम. जो काम उसको अलॉट हुआ है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वेदर और नॉट ही हैज़ मेड अ सेपरेट रिपोर्ट. भले ही उसने सेपरेट रिपोर्ट बनाई है या नहीं बनाई है, हर एक उस काम के लिए जिस काम के लिए उसको अलॉट, जो काम उसको अलॉट किया गया उसके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है ही ऑन द वर्क परफॉर्म बाय हिम. ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात करें तो जो जॉइंट ऑडिटर होते हैं वो जॉइंटली एंड सेवरली दे आर रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट कंडक्टेड बाय देम. और कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, in respect of the audit work which is not divided among the joint auditors and is carried on by all of them. जो ऑडिट वर्क डिवाइडेड नहीं था, सबके पास बटा हुआ, मतलब बहुत सा, मतलब जैसे मानो कि 100% ऑडिट का है
उसमें से 90% तीनों ऑडिटर को दे दिया, बट 10% जो एरिया था वो किसी को भी डिवाइड नहीं हुआ, तो उस 10% के लिए तीनों ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, जो भी डिसीजन सारे जॉइंट ऑडिटर ने मिल के लिया है उसके लिए तीनों जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज, जो भी ऑडिट प्लानिंग करी है उन लोगों ने कॉमन ऑडिट एरियाज के लिए। कंसर्निंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स, जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म होंगे उनके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, उसके लिए हर एक ऑडिटर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। थर्ड पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स विच आर बॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर बाय एनी ऑफ देम एंड ऑन विच देर इज अ अग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, कोई भी ऐसा पॉइंट था एक जॉइंट ऑडिटर निकाल के लेके आया और उस पॉइंट पे तीनों जॉइंट ऑडिटर्स ने अग्री किया, तो देन ऑल्सो दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लिएबल। फोर्थ पॉइंट, फॉर एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते हो तो एंटिटी शॉल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूट, जो भी रिलेवेंट स्टैट्यूट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं दैट दे शॉल कंप्लाई विद देम, इफ नॉट कंप्लाइड दे शॉल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। फॉर इंश्योरिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अब आपको जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करना है, यहाँ पे रेलेवेंट स्टैट्यूट का, यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द AFRF से जो भी आपको रिक्वायरमेंट थे उनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर होनी चाहिए। फॉर इंश्योरिंग दैट द ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और अदर रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट जो भी ICAI ने इशू किए हैं। For ensuring that the audit report complies with the requirements of the relevant statutes, applicable auditing standards, and the other relevant pronouncements issued by ICAI. ICAI ने जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, रेलेवेंट स्टैट्यूट्स ने जो भी पॉइंट्स या फिर प्रोनाउंसमेंट ICAI के जो भी इशूड हैं उनके हिसाब से आपका ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट शॉल कंप्लाई विद दोज थिंग्स। सिक्स्थ पॉइंट, इट इज़ अ सेपरेट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर, हर एक जॉइंट ऑडिटर की स्पेसिफिक और सेपरेट जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू स्टडी एंड इवैल्यूएट द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ताकि आप स्टडी करो और इवैल्यूएट करो प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल की जो इंटरनल कंट्रोल का प्रिवेलिंग सिस्टम है, दैट यू शुड स्टडी एंड इवैल्यूएट प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू द वर्क एलोकेटेड टू हिम, द एक्सटेंट ऑफ द इंक्वायरीज टू बी मेड इन द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट, जितनी एक्सटेंट तक आप जा सकते हो, जितना डीप में जाके आप उस ऑडिट को चेक कर सकते हो, उस कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो। इट इज़ द सेपरेट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी सेपरेट और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक जॉइंट ऑडिटर की टू स्टडी एंड इवैल्यूएट द प्रिवेलिंग सिस्टम, स्टडी एंड इवैल्यूएट द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, study and evaluate the prevailing system of internal control relating to the work allocated to him, जो भी काम उनको अलॉट हुआ है उसके लिए आपको स्पेसिफिक और सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्वायरीज टू बी मेड इन द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट, उसके ऑडिट करते करते जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको जिस भी एक्सटेंट तक उसको इंक्वायरीज करने की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, स्पेसिफिक और सेपरेट। Seventh point, the responsibility of obtaining and evaluating information and explanation from the management is generally a joint responsibility of all the auditors. ऑडिटर जो मैनेजमेंट है उसे ऑब्टेन करना और इवैल्यूएट करना, उसकी इन्फॉर्मेशन को, उनकी एक्सप्लेनेशंस को, ये हर एक जॉइंट ऑडिटर की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक जॉइंट ऑडिटर की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट्थ पॉइंट, each joint auditor is entitled to assure that the other joint auditors have carried out their work in accordance with the generally accepted audit procedures. हर एक जॉइंट ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर का काम चेक करे कि उसने प्रॉपर जो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनके हिसाब से काम किया है, एंड देयरफॉर इट वुड नॉट बी नेसेसरी फॉर जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स। Each joint auditor is entitled to assure that the other joint auditor have carried out their part of work in accordance with the generally accepted audit procedures, and therefore it would not be necessary for joint auditor to review the work performed by other joint auditors. मतलब या तो ये है कि हर एक जॉइंट ऑडिटर को ये एश्योर करना चाहिए कि जो दूसरा जॉइंट ऑडिटर ने काम किया होगा, ही हैड डन द वर्क एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
जो भी एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनके हिसाब से काम किया होगा, इसलिए उसको दूसरे का काम देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देयरफॉर इट वुड नॉट बी नेसेसरी फॉर जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय अदर जॉइंट ऑडिटर, इसलिए दूसरे जॉइंट ऑडिटर का काम देखने की ज़रूरत नहीं है। बट डिसएग्री करेगा तो फिर अपना कर सकता है वो। वेयर इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट करते करते अगर अ जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस मैटर्स विच आर रेलिवेंट इन द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, अगर एक जॉइंट ऑडिटर अपना काम करते करते किसी ऐसे एरिया पे पहुंचता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे जॉइंट ऑडिटर को थी, एंड वेयर द अदर जॉइंट ऑडिटर डिजर्व्स देयर अटेंशन, और जहाँ पे दूसरे ऑडिटर को देखना चाहिए यहाँ गलती हो सकती है, और विच रिक्वायर डिस्क्लोजर और रिक्वायर डिस्कशन, या तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है या तो डिस्कशन रिक्वायर्ड है उस पॉइंट पे, विथ और एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट by other joint auditors, the said joint auditor shall communicate the same to the other joint auditor in writing prior to the completion of the audit. दूसरे joint auditor को in writing prior to the completion of the audit लिख के बताए audit complete होने से पहले। Normally the joint auditors are required to issue common audit report. Normally क्या होता है कि जो joint auditors होते हैं उनको एक common report ही issue करनी चाहिए। However इसका एक्सेप्शन है इस पॉइंट का कि अगर कोई जॉइंट ऑडिटर डिसएग्री करता है विद रिगार्ड टू द ओपिनियन, या तो पूरे ओपिनियन से डिसएग्री करता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर मैटर से विच इज़ कवर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट, दे शॉल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। वो जो ऑडिटर डिसएग्री कर रहा है वो अपना ओपिनियन एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में इशू करे। अ जॉइंट ऑडिटर इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द मेजॉरिटी, और जो जॉइंट ऑडिटर होता है ही इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब जैसे इस केस में था कि 3 ऑडिटर थे, 2 की मेजॉरिटी और 1 अकेला पड़ गया, तो दैट सिंगल ऑडिटर, दैट जॉइंट ऑडिटर is not bound by the views of the majority. A joint auditor is not bound by the views of the majority of the joint auditors regarding the opinion or matters to be covered in the audit report. जो भी मैटर ऑडिट रिपोर्ट में कवर होंगे, जिनके ऊपर भी ओपिनियन दिया जा रहा है, उसमें जॉइंट ऑडिटर बाउंड नहीं है कि वो मेजॉरिटी व्यूज़ के पीछे जाए। वो अपना ऑडिट ओपिनियन अलग से एक्सप्रेस कर सकता है। शॉल एक्सप्रेस ओपिनियन फॉर्म्ड बाय द सेट जॉइंट ऑडिटर। उस जॉइंट ऑडिटर का खुद का जो ओपिनियन है वो उसे एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट के केस में, पता चला अग्री कर रहा है उसके बाद भी नई रिपोर्ट बना दी, ऐसा नहीं है। अगर जब आप डिसएग्री कर रहे हो तब आप अपनी नई रिपोर्ट बनाओ। इन सच सर्कमस्टांसेस द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द जॉइंट ऑडिटर शैल मेक अ रेफरेंस टू द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। तो इस केस में क्या होगा, जो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी है इशूड बाय द अदर जॉइंट ऑडिटर, जो दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने इशू करी है। फर्दर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट shall make reference to the audit report issued by other joint auditors. Such reference shall be made under the heading other matter paragraph. और ये reference कहाँ आएगा, ये other matter paragraph में आएगा, जो कि ऐसे 706 में emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditors report से related है। कहाँ रिपोर्ट करेंगे इसको ऑडिट रिपोर्ट में, अदर मैटर पैराग्राफ में, ऐसे पॉइंट को emphasis of matter paragraph and other matter paragraph इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऐसे 706। इस क्वेश्चन में ऐसे 706 यूज़ हुआ है और दूसरा ऐसे 299 यूज़ हुआ है, दैट इज़ जॉइंट ऑडिट। तो कंक्लूजन लास्ट में यही निकला कि Z is suggested to express his own opinion through a separate report, whereas X और Y may provide the joint report. बी पार्ट क्या था क्वेश्चन 6 का, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स इन केस रिपोर्ट मेड बाय मिस्टर वाई एक्चुअली लेटर ऑन फाउंड फॉल्टी। पता चला बाद में जो एक्स की वो वाई का एक्चुअली था, उसने फॉल्टी रिपोर्ट इशू करी थी यूजिंग द। अब यहाँ पे नया ऐसे लग जाएगा, यहाँ पे ऐसे 620 लगेगा। ऊपर ऐसे 620 की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि वहाँ पे जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी थी ऑडिटर की, वहाँ पे एक्सपर्ट के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला था। वहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी थी। नेक्स्ट में एक्चुअरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने कि इसने गलत दिया, तो उस केस में क्या होगा। इस केस में आपके ऊपर ऐसे 620 लग जाएगा, दैट इज़ यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। द एक्सपर्टीज ऑफ एन एक्सपर्ट में बी रिक्वायर्ड इन द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स or employee benefit plans, etc. However, the auditor has sole responsibility for the audit opinion expressed, and that responsibility is not reduced by the auditor's use of the work of an auditor's expert. The auditor shall evaluate the adequacy of the auditor's expert work for the auditor's purpose, including the relevance and reasonableness of that expert's findings or conclusions and their consistency with other audit evidence as per SA 500.
Further, in view of SA 620, if the expert's work involves use of significant assumptions and methods, then the relevance and reasonableness of those assumptions and methods must be ensured by the auditor. And if the expert's work involves the use of source data that is significant to that expert's work, the relevance, completeness, and accuracy of that source data in the circumstances must be verified by the auditor. In the instant case, Mr. X, Mr. Y, and Z, jointly appointed as an auditor of KRP Limited, referred to their own actuaries for the valuation of gratuity scheme. Actuaries are an auditor's expert as per SA 620. Mr. Y referred actuary has provided the gratuities valuation report, which later found faulty. Further, Mr. Z is not agreed with this report, therefore he submitted a separate audit report specifically for such gratuity valuation. In such situation, it was the duty of Mr. XYZ, before using the gratuity valuation report of actuary, to ensure the relevance and reasonableness of assumptions and methods used. To ensure the relevance and reasonableness of the methods and assumptions used. They were also required to examine the relevance, completeness, and accuracy of the source data used for such a report before expressing their opinion. Mr. X and Mr. Y will be held responsible for gross negligence and using such faulty report without examining the adequacy of expert actuaries work, whereas Mr. Z will not be held liable for the same due to separate opinion expressed by him. तो इस केस में SA 620 लगा, विच इज़ यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट. एक मतलब जब एक्सपर्टीज़ यूज़ होती है एक्सपर्ट की, मे बी रिक्वायर्ड इन एक्चुरियल कैलकुलेशन. अब एक्चुरियल कैलकुलेशंस में क्या होते हैं, एक्चुरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक्सपर्टीज़ चाहिए आपको लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, विच इज़ एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स में भी रिक्वायर्ड होती है. ग्रेचुटी पेमेंट में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स में, इन सब में एक्चुरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. हाउएवर द ऑडिटर हैज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउएवर क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द ऑडिट ओपिनियन. जो भी एक्सप्रेस करेगा वो ऑडिट ओपिनियन, उस पर ऑडिटर की ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक्सपर्ट के ऊपर नाम नहीं डाल सकता. एंड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट रिड्यूस्ड बाय द ऑडिटर्स यूज़ ऑफ द, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती कि वो यूज़ कर रहा है किसी ऑडिटर एक्सपर्ट का, तो उससे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाएगी. द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, एक्सपर्ट्स वर्क. जो ऑडिटर है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो कितना एडिक्वेट काम है जो जिस एक्सपर्ट का वो यूज़ कर रहा है. ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क जो यूज़ हो रहा है वो कितना एडिक्वेट है ऑडिटर के पर्पज़ के लिए, इंक्लूडिंग द रेलेवेंस, उसका कितना रेलेवेंट है वो, कितना रीजनेबल है वो. रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स फाइंडिंग, जो उस एक्सपर्ट ने फाइंडिंग्स निकाली हैं और जिस कंक्लूजन पे वो एक्सपर्ट पहुंचा है. एंड देयर कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस, और जो भी उसके फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं ऑडिट एविडेंस के साथ में. जो ऑडिट एविडेंस आपने SA 500 में, SA 500 इज़ ऑडिट एविडेंस, वो रेलेवेंट और रीजनेबल है कि नहीं ऑडिटर एक्सपर्ट के फाइंडिंग्स रिलेटिंग टू देयर, वेदर दे आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिट एविडेंस और नॉट. ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एवेल्युएट करे पूरा. फर्दर, इन व्यू ऑफ SA 620, दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, इफ द एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड. और जो एक्सपर्ट का काम है जिसमें सिग्निफिकेंट अजम्पशंस और मेथड्स यूज हो रहे हैं, उनका रेलेवेंस है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, दोज अजम्पशंस एंड मेथड्स आर वेदर रेलेवेंट और रीजनेबल, whether or not they are relevant or reasonable must be ensured. वो ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए. एंड इफ़ द एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व यूज़ ऑफ सोर्स डेटा, और अगर एक्सपर्ट का जो काम है उसमें सोर्स डेटा अगर यूज़ होता है तो उस सोर्स डेटा को भी चेक करना चाहिए वेदर दैट सोर्स डेटा इज़ करेक्ट और नॉट. करेक्ट नहीं, यहाँ पे सोर्स डेटा का रेलेवेंस, सोर्स डेटा कंप्लीट है कि नहीं, सोर्स डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, तीन चीज़ें चेक करनी है आपको सोर्स डेटा के लिए. रेलेवेंस, accuracy, completeness. Relevance, accuracy, completeness. Arc: accurate, complete, relevant. Accuracy, completeness, relevance. Of this relevance, completeness and accuracy of the source data that is being used by the expert when the expert's opinion is based on source data. And that source data in the circumstances must be verified by the auditor. जो source data है उसको auditor verify करे. अब इस केस में, इंस्टेंट केस में क्या हुआ था कि X और XYZ जॉइंट ऑडिटर्स थे, जहाँ पे उन्होंने अपने एक्चुरीज से वैल्यूएशन करवाया ग्रेचुइटी स्कीम का.
एंड एक्चुअरीज आर एन ऑडिटर एक्सपर्ट। जो SA-620 है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक्चुअरी जो होता है वो ऑडिटर एक्सपर्ट होता है। एंड देयरफॉर वाई रेफर्ड एक्चुअरी, और उसमें क्या हुआ कि जिस एक्चुअरी को वाई ने रेफ़र किया था उसने फॉल्टी रिपोर्ट बना दी, और जो मिस्टर जेड था उसने एग्री नहीं किया था उस रिपोर्ट से, और इसलिए उसने अपनी सेपरेट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इशू करी थी सिर्फ ग्रेचुटी वैल्यूएशन के लिए, स्पेसिफिकली फॉर सच ग्रेचुटी वैल्यूएशन। उस सिचुएशन में, इन सच सिचुएशन, अब इसमें क्या हुआ कि जो एक्स और वाई थे उन्होंने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करी। इट वॉज ड्यूटी ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड बिफोर यूजिंग द ग्रेचुटी। अब इस केस में ड्यूटी क्या थी ऑडिटर की ड्यूटी ये थी कि जो ग्रेचुटी वैल्यूएशन रिपोर्ट एक्चुअली की वो लोग यूज़ कर रहे हैं, दे ऑडिटर शैल इंश्योर द रेलेवेंस, ऑडिटर को उसका रेलेवेंस और उसका रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशंस एंड मेथड्स जो भी उस एक्चुअरी ने यूज़ किए उन्हें चेक करना चाहिए था कि वो करेक्ट है, वो एक्यूरेट है कि नहीं, एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रिलायबल। if that is based on the source data used for report before expressing their opinion। जो भी सोर्स डेटा पे वो बेस्ड थे, दे शैल एग्जामिन द रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा दैट इज विच इज़ यूज्ड फॉर सच रिपोर्ट बिफोर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। ओपिनियन देने से पहले चेक करो भाई जाके कि अगर किसी सोर्स डेटा पर डिपेंडेंट है तो वो सोर्स डेटा रेलेवेंट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। मिस्टर एक्स और वाई जो हैं इस केस में ग्रॉसली नेग्लिजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे क्योंकि उन्होंने फॉल्टी रिपोर्ट पे अपना ओपिनियन दिया। हाउएवर जो जेड था, ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम ड्यू टू सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय हिम। जो जेड था उसके ऊपर कोई भी बात नहीं आएगी क्योंकि उसने सेपरेट रिपोर्ट इशू किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। As an auditor of RST Limited, Mr. P applied the concept of materiality for the financial statements as a whole on the basis of obtaining additional information of significant contractual arrangements that draw attention to a particular aspect of a company's business. He wants to re-evaluate the materiality concept. Please guide him. RST Limited के आप ऑडिटर हो। मिस्टर पी जो है RST Limited का ऑडिटर है, उन्होंने अप्लाई किया मटेरियलिटी का कंसेप्ट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट एज अ होल। पूरे ऑडिट के लिए मटेरियलिटी का एक कंसेप्ट लगा दिया उन्होंने। मटेरियलिटी का होता है ना कि आप 1 लाख से नीचे के ट्रांजेक्शन्स नहीं चेक करोगे अगर बहुत बड़ा एंटरप्राइज है, तो ऐसा कुछ लगा दिया उन्होंने कि इससे नीचे का है तो वो मटेरियल नहीं मानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स दैट ड्रॉ अटेंशन टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनीज बिजनेस, जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर लाइट डालता है। ही वॉन्ट्स टू रीवैल्यूएट द मटेरियलिटी कंसेप्ट। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिस्टर पी था वो सोच रहे हैं कि मैं अपना मटेरियलिटी का जो कंसेप्ट मैंने बनाया था इस पर्टिकुलर ऑडिट के लिए उसको रिवाइज करता हूँ, तो इसीलिए अब ऑडिटर को गाइडेंस देनी है। आंसर नंबर 7 फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियलिटी कंसेप्ट। अगर आपको मटेरियलिटी कंसेप्ट रीवैल्यूएट करना पड़े तो उस केस में क्या होगा। In the instant case, Mr. P as an auditor of RST Limited has applied the concept of materiality for the financial statements as a whole, but he wants to reevaluate the materiality concept on the basis of additional information of significant contractual arrangements which draw attention to a particular aspect of the company's business. In the instant case, question देख लो एक बार। As an auditor of RST Limited, Mr. P has applied the concept of materiality, यहाँ से चालू हुआ, applied the concept of materiality for the financial statements as a whole, but he wants to reevaluate the materiality concept on the basis of additional information of significant contractual arrangements। थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से फिर वही चालू हो गया। significant contractual arrangements that draw attention of a particular aspect of the company's business. He wants to reevaluate the materiality concept. Now जो essay relevant है इसमें that is SA-320, that is materiality in planning and performing an audit. Materiality in planning and performing an audit. While establishing the overall audit strategy, the auditor shall determine materiality for the financial statements as a whole. He should set the benchmark on the basis of which he performs his audit procedure.
If in the specific circumstances of the entity there is one or more particular classes of transactions, account balances or disclosures for which misstatements of lesser amounts than the materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decision of users taken on the basis of the financial statements. The auditor shall also determine the materiality level or levels to be applied to those particular classes of transactions, account balances, or disclosures. The auditor shall revise materiality for the financial statements in the event of becoming aware of information during the audit that would have caused the auditor to have determined a different amount initially. If the auditor concludes a lower materiality for the same, then he should consider the fact that whether it is necessary to revise performance materiality and whether the nature, timing, and extent of the further audit procedures remain appropriate. Thus, Mr. P can re-evaluate the materiality concept after considering the necessity of such revision. आपको necessity check करनी पड़ेगी, whether it is necessary to revise the concept of, whether it is necessary to re-evaluate the materiality as per SA 320, which is materiality in planning and performing an audit. Materiality के लिए अलग से ऐसे है, that is SA 320, which is materiality in planning and performing an audit. While establishing the overall audit strategy, the auditor shall determine materiality. While establishing the overall audit strategy, the auditor shall determine materiality for the financial statement as a whole. जब भी आप मटेरियलिटी डिटरमाइन करोगे, आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एक साथ मटेरियलिटी डिटरमाइन करोगे. ही शुड सेट द बेंचमार्क, एक बेंचमार्क सेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ विच ही शुड परफॉर्म हिज ऑडिट प्रोसीजर्स. एक बेंचमार्क सेट करोगे कि इस बेसिस पे हम अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. इफ़ इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी, कुछ एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस करते करते देर इज़ वन और मोर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स आते हैं या फिर कोई अकाउंट बैलेंसेस आते हैं या फिर कुछ भी डिस्क्लोजर आते हैं फॉर विच मिसस्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट्स देन द मटेरियलिटी. मिसस्टेटमेंट पता चलते हैं आपको उस मटेरियलिटी के अमाउंट से कम के, देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस. ऐसा क्या होता है कि छोटे छोटे अमाउंट मिलते जाते हैं मिसस्टेटमेंट के, जितनी मटेरियलिटी थी उसमें क्या होता है कि जब वो एक साथ पूरा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल देखोगे, दैट दे विल क्रिएट सम material misstatement and it is reasonably be expected to influence the economic decision. और उसकी वजह से जो economic decisions होंगे यूजर्स के वो अफेक्ट पड़ेंगे. taken on a basis of the financial statement. The auditor shall also determine the materiality level. तो इसीलिए ऑडिटर को materiality level और levels to be applied to those particular classes of accounting transactions. Economic decisions of users taken on the basis of financial statement. The auditor shall also determine the materiality level. तो उस केस में क्या होगा कि ऑडिटर को मटेरियलिटी लेवल या फिर लेवल्स जो भी वो अप्लाई कर रहा है, एक लेवल या बहुत सारे लेवल्स जो उसने अप्लाई किए हैं फॉर दैट पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, दैट शुड बी डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर, कैसा क्या रहना चाहिए. एंड द ऑडिटर शुड रिवाइज मटेरियलिटी. अब ऑडिटर को रिवाइज करना पड़ेगा मटेरियलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट that would have caused the auditor to have determined a different amount or amounts initially. If the auditor concludes a lower materiality, अगर auditor एक lower materiality को conclude करता है, then he should consider the fact. फिर उसको ये भी देखना पड़ेगा कि whether he should revise the performance materiality, क्या उसको पूरे परफॉर्मेंस के लिए जो भी काम अभी तक किया हुआ है उसके लिए भी रिवाइज करना पड़ेगा कि मटेरियलिटी, वेदर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स रिमेन अप्रोप्रिएट. और जो भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अब आगे होंगे उसके लिए वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं. पता चला सिर्फ एक पॉइंट के लिए चेंज कर दिया, बट आगे जो था उसके लिए मटेरियलिटी वही रखनी चाहिए थी. तो वही जो भी है उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट देख के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को देखते हुए उसे अप्रोप्रिएट मटेरियलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी. और ऑडिटर कैन रीवैल्यूएट द मटेरियलिटी कंसेप्ट आफ्टर कंसिडरिंग द नेसेसिटी ऑफ सच रिविजन. अगर नेसेसरी है तो देन ही शुड रीवैल्यूएट द मटेरियलिटी. तो इस केस में सिर्फ ऐसे 320 यूज़ हुआ, दैट इज़ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट. मटेरियलिटी